we are going to do, today we are going to do EVH chapter 14. Today I am going to start EVH chapter 14. Today I am going to start EVH chapter 14, Art Forms of India. Today I am going to start chapter 14, Art Forms of India. Today I am going to start this chapter, chapter 14, Art Forms of India. I hope all of you have opened your book. Okay. Now, in this chapter, Art Forms of India, you know India has different types of art forms in India. अलग अलग तरह के कारीगरी इंडिया में पाए जाते हैं, आप लोग को मालूम है. Today I am going to start chapter 14, Art Forms of India. आज हम लोग chapter 14, Art Forms of India चालू कर रहे हैं. You know that what we are going to study in this, I am going to discuss about that. And different art forms of India. India has a different art forms like handicrafts, like paintings, handicrafts, embroidery. All these are different types of art forms. That even dance forms are there, which comes under art, like Bharatnatyam, Kuchipuri, then flute playing, then tabla playing. All these are different type of art forms of India. In this chapter, what we are going to learn, we will learn about various art forms of India. Various art forms of India के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में. और क्या पढ़ेंगे? About मधुबनी आर्ट. मधुबनी आर्ट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. Then about, we are going to study in the chapter about worldly art. यानी worldly art क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. मधुबनी आर्ट के बारे में पढ़ेंगे. Then we are going to learn about Patta Chitra. What is Patta Chitra? We are going to learn about it. Then we are going to learn in the chapter Tanjore painting. Tanjore painting क्या है? We are going to learn about Tanjore painting. Then we are going to learn about Phar painting. What is Phar painting? We are going to learn. Then we are going to learn about Kalamkari painting. We are going to learn about Kalamkari painting. तो इस चैप्टर में हम लोग इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे. ओके. ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक पेंटिंग देखो, ये वाला, दिस वन. This painting depicts a scene. ये इस पेंटिंग में कुछ ऐसा सीन है जिसको डिस्क्राइब करना है. तो इस पेंटिंग से देख के हमें क्या पता चलता है कि कोई फेस्टिवल या किसी समारोह का माहौल है. एक इंसान बीच में बहुत बड़ा एक तबला है, यानी कि ढोल, वो बजा रहा है, और बाकी के लोग उसके आजू बाजू नाच रहे हैं. ओके. ये डिपिक्ट करता है सम सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल और सम साइट ऑफ ट्रेडिशन इन इंडिया, कि ढोल नगारा बजते हैं और आजू बाजू लोग नाचते हैं. ओके. नाउ आई एम मूविंग अहेड. आई होप आप लोग 104 पेज नंबर 104 खोल के रखें. अब हम 105 में जा रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू पेज नंबर 105. All of you open page 105. All of you open to page 105. 105 को खोलिए. Now, let's come to 105. अब हम लोग chapter 105 में आएंगे. And we are going to discuss about various art forms of India. ओके. अब हम लोग देखेंगे इंडिया में अलग अलग वेरियस आर्ट फॉर्म्स क्या है. नाउ लेट्स स्टार्ट. आई एम हियर.
इंडिया, यहाँ पे हूँ जहाँ मैंने टिक किया है, मैं वहां से हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। आप लोग भी अपना बुक देखें। यू ऑल्सो सी योर बुक्स and check it out from here. I am reading out the chapter for you. India has a diversity. जो भी वर्ड में अंडरलाइन कर रहा हूं, तुम लोग भी वर्ड अंडरलाइन करो। इंडिया हैज अ डाइवर्सिटी ऑफ आर्ट फॉर्म्स। इंडिया में बहुत सारा आर्ट फॉर्म्स आए हैं। ओके, इंडिया हैज अ डाइवर्सिटी ऑफ आर्ट फॉर्म एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म। These art forms can vary from one state to another. Obviously, ये आर्ट फॉर्म जो है सबका अलग अलग है। एक राज्य का आर्ट फॉर्म दूसरे राज्य से मिल नहीं सकता। जैसे लोग जैसे वॉली पेंटिंग बनाते हैं महाराष्ट्र में, वैसा पेंटिंग बिहार के लोग नहीं बना सकते। जैसे बिहार के लोग बनाते हैं वैसे तमिलनाडु के लोग नहीं बना सकते। जैसे तमिलनाडु के लोग बनाते हैं वैसे जम्मू एंड कश्मीर के लोग नहीं बना सकते। इसीलिए these art forms can vary from one state to another. ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग अलग हो सकता है ये आर्ट फॉर्म। They often narrate, underline narrate. Narrate का मतलब होता है describe, tells us a story. ये जो पेंटिंग्स है, ये पेंटिंग्स, ये पिक्चर, ये आर्ट, हमें ये कला जो है, ये कला हमें डिफरेंट, दे ऑफन नैरेट अ स्टोरी और एन इंसिडेंट। कोई स्टोरी बताता है हमें या कोई इंसिडेंट बताता है, कोई हादसा। इट कुड बी फ्रॉम फेमस एपिक्स। एपिक्स किससे कहते हैं? एपिक्स जो बहुत बड़े महाग्रंथ होते हैं जिसे लिखा जाता है उसे एपिक्स कहते हैं। तो हमारे भारत में बहुत सारे एपिक्स है। जैसे फेमस एपिक्स है, दो महान फेमस एपिक्स है, एक महाभारत और दूसरा रामायण। इन इंडिया दीज टू आर द ग्रेटेस्ट एपिक्स। और मैं बता दूं, महाभारत इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इट इज अ ह्यूज एपिक्स वर्ल्ड में। एपिक्स पुरानी कहानी जिसमें थोड़ी सी भी सच्चाई हो उसे हम एपिक्स कहते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड अबाउट सम ऑफ देम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब अलग अलग भारत की कला के बारे में बात करेंगे, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मधुबनी आर्ट के बारे में। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट मधुबनी आर्ट। क्या है मधुबनी आर्ट और किस राज्य में ये मधुबनी आर्ट पाया जाता है? Is very happy thing that is very glad to very happy to hear that this is an art form of Bihar. आप सभी बिहार में हैं तो आपके ही यहाँ से ये कला जो है मधुबनी कला इसी राज्य में स्थापित हुआ है। यानी कि मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला जो है ये किस राज्य का है? बिहार। बिहार आपका राज्य है। तो इस बिहार से ही मधुबनी आर्ट बिलोंग करता है। इस मधुबनी आर्ट की उत्पत्ति, इस कला की उत्पत्ति, मधुबनी आर्ट कला की उत्पत्ति इस बिहार में ही हुई। तो दिस कला, दिस आर्ट हैज टेकन बर्थ इन बिहार ओनली। दिस इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ बिहार। इट इज ऑल्सो नोन एज मिथिला आर्ट। तो मधुबनी आर्ट को हम लोग मिथिला आर्ट भी कहते हैं। यानी मधुबनी आर्ट का दूसरा नाम क्या है? मिथिला आर्ट। और ये मधुबनी आर्ट जिसको हम लोग मिथिला आर्ट भी कहते हैं, ये कहाँ की कला है? बिहार। ओके, आपके राज्य की कला है मधुबनी आर्ट। अब इस कला के माध्यम से क्या दर्शाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इट depicts
तो ये मिथिला या मधुबनी, जिसे हम लोग मिथिला भी कहते हैं, ये क्या डेपिक्स का मतलब होता है दर्शाना। ये क्या दर्शाता है? ये सीन, किस चीज का सीन दिखाता है? जो पेंटिंग बना हुआ होता है मधुबनी हाथ में, जो कला बनाए जाते हैं, यहाँ पे किस चीजों का सीन होता है? इट डेपिक्ट द सीन्स फ्रॉम डिफरेंट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। जैसे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट मैंने बताया था ना, एपिक्स, रामायण, महाभारत, फिर जैसे बहुत सारे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, फिर जैसे गरुड़ पुराण, शिव पुराण, महापुराण, विष्णु पुराण, उन सब से लेकर ये मधुबनी आर्ट जो है, ये मधुबनी कला दर्शाते हैं अलग अलग कहानी के रूप। ओके, यूजिंग ब्राइट कलर्स, और ब्राइट कलर यूज होता है मधुबनी में। सो यूजिंग ब्राइट कलर्स इनिशियली मतलब शुरुआत में, इनिशियली यानी शुरुआत में, इट वॉज क्रिएटेड ऑन मड। शुरुआत में ये मधुबनी आर्ट किससे बनाया जाता था? मड वॉल यानी मिट्टी के दीवारों पर। एंड नाउ डेज, और अब इट इज क्रिएटेड ऑन क्लोथ्स और पेपर में भी। यानी कि मधुबनी कला जो है, जिसे मिथिला आर्ट भी कहते हैं, जो बिहार में उत्पत्ति हुई, बिहार से जन्मा। शुरुआत में इस कला को हम लोग मिट्टी के दीवार पे करते थे, पर अब इसे कपड़े पे भी बनाया जाता है तथा इसकी पेंटिंग भी बनाई जाती है पेपर में। ओके, आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड। सो अंडरस्टूड, अब आप लोग समझ गए मधुबनी आर्ट क्या है। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मधुबनी आर्ट। अब मैं जाता हूं दूसरे कला में, डिफरेंट नेक्स्ट आर्ट। द नेक्स्ट आर्ट इज वर्ली आर्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट आर्ट? वर्ली आर्ट। दिस फॉर्म ऑफ आर्ट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देख लो, जिस तरह मधुबनी आर्ट बिहार से बिलोंग करता है, उसी तरह वर्ली आर्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। यानी वर्ली आर्ट की उत्पत्ति कहाँ हुई? महाराष्ट्र। इट पोर्ट्रेट में दर्शाता है द डेली लाइफ ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग यूजिंग वेरियस शेप्स लाइक सर्कल्स, ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स। यानी ये अलग अलग एक्टिविटीज, ये पोर्ट्रेट द डेली लाइफ ऑफ द पीपल एंड एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग, जैसे अलग अलग कला, जैसे कला का अलग अलग दिशा होता है, अलग अलग रंग रूप होता है, तो अलग अलग शेप होता है, अलग अलग ढांचा होता है, वही देख रहे हैं। ओके, तो इट पोर्ट्रेज द डेली लाइफ ऑफ द पीपल एंड एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग। तो महाराष्ट्र में जो ये वर्ली आर्ट जो जन्मा है, इस वर्ली आर्ट के थ्रू इसमें क्या दर्शाया जाता है? डेली लाइफ, जो रोजाना जिंदगी के बारे में जो एक्टिविटीज है, जैसे हार्वेस्टिंग यूजिंग वेरियस शेप्स लाइक सर्कल, ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स। तो देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे वर्ली आर्ट, सी स्क्वायर शेप में है, ये वर्ली आर्ट स्क्वायर शेप में है। कैन यू सी? ये वर्ली आर्ट स्क्वायर शेप में है। तो इसी तरह ये कला सर्कल में या ट्रायंगल या स्क्वायर शेप में अंदर बनाया जाता है, और ये रोजाना जिंदगी के ऊपर बनाया जाता है, जैसे हार्वेस्टिंग। ओके, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया। और ये भारत का एक बहुत पुराना, बहुत प्राचीन कला है, ये वर्ली आर्ट। इट इज क्रिएटेड बोथ ऑन मड वॉल्स एंड ऑन क्लोथ्स एंड पेपर। और ये वर्ली का जो है, वर्ली आर्ट तो ये कला जो है, दिस आर्ट फॉर्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म, ये एक बहुत पुरानी कला है, ये वर्ली आर्ट इंडिया का।
इट इज क्रिएटेड बोथ ऑन मड वॉल्स, ये मिट्टी के दीवार में भी बनाया जाता है। इट इज क्रिएटेड ऑन मड वॉल्स ऑल्सो, मिट्टी के दीवार पे भी, कपड़ों पे भी, क्लोथ्स पे भी और पेपर पे भी। ओके, ये डिजाइन। तो आज हम लोगों ने इस टुडे इन दिस क्लास हम लोगों ने क्या क्या देखा? 2 कला, मधुबनी आर्ट के बारे में जाना जो बिहार से जन्मा है, और वर्ली आर्ट के बारे में जाना जो महाराष्ट्र से जन्मा है। ओके, और बाकी यू कैन सी पत्ता चित्र, तंजोर पेंटिंग एंड ऑल, ये हम लोग कल से डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक। तो आप लोग यहाँ आज यहाँ तक पढ़ाई हुआ है तो आप लोग टिक कर दीजिए यहाँ, और डेट लिख दीजिए आज का 12 नवंबर, मतलब ये आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। ओके, यहाँ डेट लिख दीजिए। और एक चीज, आज से ये चैप्टर हम लोगों ने चालू किया ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए चैप्टर 14 के ऊपर में स्टार्टेड, यहाँ लिख दीजिए स्टार्टेड, और आज का डेट दीजिए स्टार्टेड 12 नवंबर 2020। ओके, ऐसे ऊपर लिख दीजिए जहाँ चैप्टर 14 है, यू राइट डाउन एट द टॉप स्टार्टेड एंड टुडेज डेट। इससे ये पता चल जाएगा हम लोगों को जब भी चैप्टर खोलेंगे कि कौन चैप्टर कब चालू हुआ था। ओके, so the rest of the explanation I will give tomorrow.